Hello, dear students. Welcome to the e-lecture on Anandam, the joy of giving. In the previous e-lecture, I introduced you to the concept of Anandam, basically what is Anandam and how one can achieve Anandam, that is, how one can achieve the joy of giving. The today's e-lecture is on be in the moment. How to enjoy the present moment to the best. How to live in the present moment without any worries, without any stress, and how one can give his or her best in the present moment. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Before beginning or before introducing you to today's e-lecture, let's first read this quote by Leo Tolstoy. He says, "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." एवरीवन, हर कोई इस वर्ल्ड को बदलना चाहता है, इस दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन कोई भी, नो वन, कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोट बिकॉज अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उस दुनिया का एक पार्ट, एक हिस्सा हम खुद भी हैं. तो हमें खुद को बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए. हमें चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. चेंज के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना आना चाहिए. सो टुडेज ई लेक्चर ऑन आनंदम is basically a discussion of Leo Tolstoy's short story Three Questions. This is a very interesting, very inspiring, very motivating story which all the students might have, or I would rather say must have studied in their classes in 10th or somewhere in 8th. In today's e-lecture, I am revising this short story where we will learn some concepts that will definitely take you towards Anandam, towards the joy of giving. So let's read this short story and let's try to find out the hidden meaning in the short story, the moral of the short story, which will further help us in achieving our target of being happy, of being cheerful, of being motivated and contented. So let's read this short story. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा को, एक किंग को ये ख्याल आता है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, वो कौन से लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए और किन्हें उसे अवॉइड करना चाहिए, एंड अबव ऑल अगर उसे यह पता चल जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए, तो शायद जो भी एक्शन वो करे, जो भी काम वो करे, तो उसमें वो कभी भी फेल नहीं होगा. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. इस ख्याल को आने के बाद में किंग ने अपने पूरे किंगडम में इस बात की घोषणा करवा दी कि वो ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे ये सिखा सके, बता सके कि किसी भी एक्शन को शुरू करने का राइट टाइम क्या है,
सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी लोग कौन हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, ऐसा इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर कोई उसे देता है तो किंग उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, ऐसा किंग ने प्रोक्लेम करवाया, घोषणा करवाई. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. काफ़ी learned men, काफ़ी scholarly people किंग के पास आए, लेकिन सब ने उसके questions का जवाब अलग अलग दिया. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था कि कोई भी काम करने का सबसे सही टाइम कौन सा है, इसके आंसर में किसी ने कहा कि किंग को एडवांस में ही डेज, मंथ्स एंड ईयर्स का एक टेबल बना लेना चाहिए, एक कैलेंडर बना लेना चाहिए और उस कैलेंडर के डेज के हिसाब से स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते हुए ही किंग को अपना हर काम करना चाहिए. Only thus said they could everything be done at its proper time. जिन लोगों ने सजेशन दिया उन्होंने कहा कि अगर किंग ऐसे कैलेंडर बनाकर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तभी किसी भी एक्शन को किंग उसके प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. अदर्स ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से एडवांस में डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी अब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल. तो क्योंकि उन्होंने कहा कि एडवांस में कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल है, तो अपना टाइम आइडल पास टाइम्स, फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करते हुए किंग को उसके आसपास क्या चल रहा है उस पर अटेंशन पे करते हुए फिर कोई ऐसा एक्शन करना चाहिए जो कि सबसे नीडफुल उस समय की ज़रूरत हो. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. Others ने फिर कहा किंग चाहे कितना भी अटेंटिव हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है, फिर भी एक आदमी के लिए किसी भी काम को करने का राइट टाइम डिसाइड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. इसीलिए किंग के पास एक काउंसिल होनी चाहिए वाइज मैन की, समझदार बुद्धिमान लोगों की, जो उसे किसी भी काम को करने का प्रॉपर टाइम फिक्स करने में हेल्प कर सकें. But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. इस सजेशंस पर औरों ने कहा कि कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो कि इतने अर्जेंट हो सकते हैं कि उन्हें काउंसिल के सामने रखना, डिस्कशन करना जितना समय ना हो और जिन पर तुरंत एट वंस इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ता है कि उस काम को किया जाना चाहिए या नहीं. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. और ऐसी सिचुएशन के लिए किंग को ये पहले से पता होना चाहिए कि उसे क्या, उसके आसपास क्या होने वाला है. इट इज़ ओनली मजिशियंस हु नो दैट. और यह केवल मजिशियंस ही जान सकते हैं. And therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. इसीलिए किसी भी चीज़ को पहले से जानने के लिए किंग को magician से कंसल्ट करना चाहिए. Equally various were the answers to the second question. जितने different answers first question के थे उतने ही various answers second question के आए. Some said the people the king most needed were his counselors. किंग का सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी लोग कौन हैं जिनकी बात किंग को सुननी चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए. तो कुछ ने आंसर दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट किंग के लिए उसके काउंसिलर्स हैं. अदर्स द प्रीस्ट, कुछ ने कहा नहीं, जो प्रीस्ट हैं वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अदर्स द डॉक्टर्स,
While some said the warriors were the most necessary, कुछ ने कहा डॉक्टर्स, जबकि कुछ ने कहा कि जो वॉरियर्स हैं, राजा के जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो सबसे नेसेसरी हैं. To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. किंग का थर्ड क्वेश्चन जो कि था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, कुछ ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इस पूरे वर्ल्ड में साइंस है, मतलब हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पर सोचना चाहिए. अदर्स सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, कुछ ने कहा कि नहीं, जो युद्ध कौशल होता है, युद्ध लड़ने की जो रणनीति होती है, उसकी सबसे ज़्यादा वही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ ने कहा कि नहीं, जो पूजा पाठ हवन यज्ञ होते हैं, रिलीजियस वर्शिप है, वो सबसे ज़रूरी है. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल अलग अलग थे, तो किंग ने डिसाइड किया कि वो रिवॉर्ड किसी को भी नहीं देगा. क्योंकि किंग किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. लेकिन क्योंकि किंग अभी भी अपने क्वेश्चंस का आंसर पाना चाह रहा था, तो किंग ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट को कंसल्ट करेगा जो कि अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए वाइडली रिनाउंड, बहुत फेमस है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड. हर्मिट एक ऐसे वुड, एक ऐसे जंगल में रहता था जिसे छोड़कर वो कभी कहीं नहीं जाता था. एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक. और उस वुड में, उस जंगल में, वो केवल कॉमन फॉक, आम आदमी से ही मिलता था और किसी से नहीं मिलता था. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसीलिए किंग ने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने. एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स. और जैसे ही हर्मिट की कुटिया तक पहुंचने वाला होता है, अपने घोड़े से उतर जाता है. एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन. और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं छोड़कर अकेले ही हर्मिट से मिलने निकल जाता है. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब किंग वहाँ पहुँचता है, उस समय हर्मिट अपनी हट के सामने मिट्टी खोद रहा होता है, ज़मीन खोद रहा होता है. Seeing the king, he greeted him and went on digging. किंग को देखकर हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया और वापस अपना डिगिंग वाला काम करने लगा. डिगिंग मीन्स होता है खोदना. The hermit was frail and weak. हर्मिट बहुत दुबला पतला कमज़ोर सा था. And each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. और हर बार जैसे ही वो अपनी स्पेड से मिट्टी में, ज़मीन में अपनी स्पेड से अटैक करता और थोड़ी सी भी मिट्टी बाहर निकालता, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. मैं आपके पास 3 questions के आंसर जानने आया हूँ. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं यह कैसे सीख सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का right time क्या है? Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिन पर मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है. एंड what affairs are the most important and need my first attention. और कौन से affairs, कौन से matters सबसे ज़रूरी हैं और जो मेरी first attention deserve करते हैं. So these are the 3 questions that the king asked to the hermit. The hermit listened to the king but answered nothing. हर्मिट ने किंग की बात पूरी सुनी लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया. He just spat on his hand and recommenced digging. कि जो हर्मिट अपना काम कर रहा था वापस उसी को करने लगा. You are tired, said the king. किंग ने कहा आप काफ़ी थक गए हैं. Let me take the spade and work a while for you. ये स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं थोड़ी देर आपके लिए काम कर देता हूँ. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. और स्पेड किंग को देकर हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गए.
When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. किंग ने जब 2 बेड्स मिट्टी ज़मीन 2 जगह से खोद दी, 2 छोटे छोटे बेड्स बना दिए, उसने वापस हर्मिट से अपने क्वेश्चन रिपीट किए. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." हर्मिट ने फिर उसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि उठे, अपने हाथ स्पेड को लेने के लिए आगे बढ़ाए और कहा, अब आप कुछ देर आराम करिए और मुझे कुछ देर काम करने दीजिए. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन किंग ने हर्मिट को स्पेड नहीं दिया और डिगिंग को वापस कंटिन्यू किया. 1 hour passed and another, ऐसे करके 1 घंटा निकला, फिर दूसरा. The sun began to sink behind the trees. Sunset होने लगा and the king at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so and I will return home." और जैसे ही सनसेट होने लगा, शाम होने लगी, तो किंग का पेशेंस मानो जवाब दे गया. उसने स्पेड से ग्राउंड में लास्ट स्टक किया और वापस हर्मिट से बात करते हुए कहने लगे कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया हूँ. अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए. आई विल रिटर्न होम. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. लेट अस सी हु इट इज. कोई भागते हुए आ रहा है, चलो देखते हैं कि कौन है. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड. किंग पीछे मुड़कर देखा तो एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति, जंगल से भागता हुआ आ रहा था. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. बियर्डेड मैन ने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस किया हुआ था. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथ के नीचे से ब्लड निकल रहा था. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. जैसे ही बियर्डेड मैन किंग तक पहुंचा, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और दर्द से, कमजोरी से करहाने लगा. The king and the hermit unfastened the man's clothing. किंग और हर्मिट ने मिलकर उस बियर्डेड मैन के क्लोथ्स उतारे. There was a large wound in his stomach. उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था. The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. किंग ने उसके वूंड को धोया जितने अच्छे से वो धो सकता था, और फिर अपने हैंडकरचीफ और हर्मिट के टावल से उसे बैंडेज किया. अगेन एंड अगेन द किंग वॉश्ड एंड री-बैंडेज्ड द वूंड. बार बार किंग उसके वूंड को धो रहा था और री-बैंडेज कर रहा था. एट लास्ट द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. थोड़ी देर में उस बियर्डेड मैन को होश आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. King ने fresh water लाकर उसे पिलाया. Meanwhile the sun had set and it had become cool. और इस ड्यूरेशन में सनसेट हो चुका था और काफ़ी कूल मौसम हो चुका था. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो किंग ने हर्मिट की हेल्प से वुंडेड मैन को हट के अंदर लेकर गया और बिस्तर पर लिटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. बिस्तर पर लेटे हुए जो wounded man था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बिल्कुल शांत था. But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. लेकिन किंग अपनी वॉक से और पूरे दिन जो उसने मेहनत की थी उससे इतना थक गया कि वो वहीं दहलीज पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया. so soundly that he slept all through the short summer night. वो इतना गहरी नींद में सोया कि पूरी रात निकल गई. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. जब वो सुबह उठा तो उसे कुछ समय लगा रिकॉल करने में कि वो कहाँ है और who was the strange bearded man lying on the bed, और बेड पर लेटा हुआ वो अजनबी bearded man कौन है, and gazing intently at him with shining eyes, जो कि किंग को अपनी shining eyes से घूर रहा था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बहुत ही weak voice में उस bearded man ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए.
When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने देखा bearded man ने कि किंग जाग चुका है और bearded man की तरफ ही देख रहा है, तो bearded man ने उससे माफ़ी मांगी, forgiveness मांगी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. और किंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. आप मुझे नहीं जानते हैं, बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आप पर बदला लेने की कसम खाई है, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को एग्जीक्यूट अपने देश से निकाल दिया, अपने किंगडम से निकाल दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली. I knew you had gone alone to see the hermit. मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हैं. And I resolved to kill you on your way back. और इसीलिए मैंने resolve किया, determine किया कि जब आप वापस लौटेंगे मैं उस समय आप पर अटैक करके आपको मार दूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन निकल गया और आप वापस नहीं लौटे. So I came out from my ambush to find you. इसीलिए जिस झाड़ी के पीछे मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकला आपको ढूंढने के लिए. And I came upon your bodyguard, और आपके बॉडीगार्ड से टकरा गया. And they recognized me and wounded me. और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from them. उनसे मैं बच निकला. But should have bled to death had you not dressed my wound. लेकिन शायद खून बहने से ही मेरी डेथ हो जाती अगर आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते. I wished to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने की ठानी थी बट आपने मेरी लाइफ बचाई है. Now if I live, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, and if you wish it, और अगर आप ऐसा चाहें, I will serve you as your most faithful slave, तो आपका सबसे फेथफुल गुलाम बनकर मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा. And will bid my sons do the same, forgive me, और even अपने बेटों से, अपने सन से, अपने आने वाली पीढ़ी से भी यही कहूँगा कि वो आपकी सेवा करें. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. And he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. किंग बहुत खुश हुआ कि अपने किसी एनिमी से इतनी आसानी से उसकी सुलह हो गई और एक एनिमी उसका दोस्त बनकर उसे मिला. उसने ना केवल अपने एनिमी को फॉरगिव किया बल्कि यह प्रॉमिस भी किया कि वो अपने सर्वेंट्स को, अपने खुद के फिजिशियन को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापस लौटा देगा. Having taken leave of the wounded man, घायल व्यक्ति से विदा लेते हुए, the king went out into the porch and looked around for the hermit. किंग पोर्च में गए और वापस हर्मिट को ढूंढने लगे. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. जाने से पहले किंग ने फिर सोचा कि शायद एक बार फिर से मैं अपने क्वेश्चंस के जवाब पा लूँ. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट बाहर की तरफ थे, अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और कल जो गड्ढे खोदे गए थे उनमें आज वो सीड्स बो रहे थे. The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." किंग ने फिर से लास्ट टाइम हर्मिट से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके क्वेश्चंस का आंसर दें. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. हर्मिट अभी भी अपनी कमज़ोर टांगों पर, कमज़ोर पैरों पर वैसे ही बैठे हुए थे और किंग की तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है. How answered? What do you mean? asked the king. किंग ने पूछा कैसा जवाब, कब मिला जवाब, आप क्या कहना चाह रहे हैं. Do you not see? replied the hermit. क्या तुम नहीं देख सकते हो. If you had not pitied my weakness yesterday, अगर कल तुम्हें मेरी वीकनेस पर दया नहीं आई होती, and had not dug these beds for me, अगर तुमने मेरे लिए गड्ढे ना खोदे होते, but had gone your way, और अपने रास्ते वापस चले गए होते,
दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो जो वो बियर्डेड मैन है वो तुम पर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और तुम्हें पछतावा होता कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम ये गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति मैं था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना, मेरा कुछ भला करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था. आफ्टरवर्ड्स वेन दैट मैन रेन टू अस, और उसके बाद जब वो घायल व्यक्ति भागता हुआ हमारी तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू हिम. सबसे ज़रूरी समय, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे. फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वूंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर तुमने उसकी वूंड्स की पट्टी नहीं की होती तो शायद वो बिना तुमसे सुलह किए ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी मैन वो वुंडेड मैन था, वो बियर्डेड मैन था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी उस वक्त काम था. रिमेंबर देन, इसीलिए हमेशा याद रहे, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ. सो हियर कम्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जो समय हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो है नाउ, अभी, जो प्रेजेंट मोमेंट है. It is the most important time because it is the only time when we have any power. अभी ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी समय है, क्योंकि अभी ही वो समय है जब हमारे पास पावर है कुछ भी करने की. The most necessary man is he with whom you are. सबसे ज़रूरी पर्सन वो है जिसके साथ तुम हो. For no man knows whether he will ever have dealings with anyone else. क्योंकि कोई पर्सन ये नहीं जानता है कि वो फिर कभी उस व्यक्ति से दोबारा मिलेगा या नहीं. तो इसीलिए जो आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट में है वही आपके लिए सबसे नेसेसरी मैन है, नेसेसरी पर्सन है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है करने के लिए वो है टू डू गुड, किसी का भला करना. बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, क्योंकि इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य के साथ मैन को इस लाइफ में भेजा गया है, हमें ये ह्यूमन लाइफ दिया गया है. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आज के इस ई लेक्चर का नाम बी इन द प्रेजेंट मोमेंट क्यों रखा है. बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना चाहिए, पास्ट के लेसन्स हमें सीखना चाहिए, और प्रेजेंट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वही हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस से डील करने का हमें हौसला देते हैं, हमें करेज देते हैं, हमें डिटर्मिनेशन देते हैं. सो दिस स्टोरी, द 3 questions, is a very interesting story for all students, for all human beings, because हम सब क्या करते हैं, हम सब लोग अपने क्वेश्चंस का बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर ढूंढने लगते हैं, जबकि लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी आंसर्स डिज़र्व करते हैं. So in today's lecture I'm going to tell you how you can enjoy Anandam, how you can experience Anandam. आप आनंदम कैसे पा सकते हैं, आप आनंदम कैसे एंजॉय कर सकते हैं. उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय करें, उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें. पे अटेंशन टू व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज़. जो आपकी आँखों के सामने है, जो बिल्कुल सही है और जो बिल्कुल आपकी आँखों के सामने है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्यूचर की चिंताओं में खो जाएं और प्रेजेंट में जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा ध्यान डिज़र्व करती है, हमारा अटेंशन डिज़र्व करती है, हम उसे बहुत लाइटली ले लें. तो जो भी आपके सामने है, जो भी आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट है, आपका अटेंशन डिज़र्व करता है, उस पर हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत है. डू गुड डीड्स व्हेन दी अपॉर्चुनिटी अराइज. जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी अवसर मिले, तो हमेशा गुड डीड्स, अच्छे कर्म करना चाहिए. शेयरिंग इज़ केयरिंग.
तो कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसे शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी उससे इंस्पायर हो सकें. द वे यू आंसर अ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंसेस. आप किसी भी क्वेश्चन का क्या जवाब निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, वो आपके एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है. सो दिस इज़ what I wanted to convey in today's lecture on Anandam. If you have any suggestions, any comments, then please write in the comment section. Thank you very much.